गली अस्सी चंगिया गली अस्सी चंगिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया गली अस्सी चंगिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया मनु कुशुद्धा कालिया मनु कुशुद्धा कालिया बाहर चिटविया मनु कुशुद्धा कालिया बाहर चिटविया गली अस्सी चंगिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया अचारी बुरिया रीसा करे तिनाड़िया रीसा करे तिनाड़िया जो से मैं दर खड़िया रीसा करे तिनाड़िया खड़िया गली अस्सी चंगिया गली अस्सी चंगिया अचारी
आचारी पुरिया चारी पुरिया मनहु कुशुदा कालिया बाहर चिटविया मनहु कुशुदा कालिया बाहर चिटविया गली अस्सी चंगिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया नाल खसु में रतिया नाल खसमै रतिया रतिया नाल खसु में रतिया माणे सुख रलिया नाल खसु में रतिया माणे सुख रलिया माणे सुख रलिया गली अस्सी चंगिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया आचारी पुरिया होंद ताण निताणिया रहनी मानड़िया होंद ताण निताणिया रहनी मानड़िया नानक जन्म सुकार था जे तिनके संग मिला नानक जन्म सुकार था जे तिनके संग मिला जे तिनके संग मिला गली
ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੁ ਕੁਸ਼ੋਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਤਵੀਆਂ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 85 ਨੰਬਰ 85 ਪੰਨੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਈਲਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਖੀਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਰਾਈਮ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਈਮ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਉਂ ਗਿੱਟੇ ਪਿਆ ਪਿੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਸਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਏਥਿਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਤੋ ਅਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਲੌਕਅਪ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਵੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ऐसा लॉकअप सिस्टम किया गुरु पातशाह ने। इस करके जिहड़े लोकी बाणी पढ़ते ने या जिहड़े भी बिगनर्स ने या जिहड़े भी जिग्यासू ने और वो बाणी नूं बड़े प्यार नाल समझना चाहते ने, तो बाणी की बनतर नूं समझण वास्ते जरूर मेहनत करनी चाहिए है। सानू फायदा ज़्यादा होएगा। गुरु अर्जन पातशाह ने अज की लैंग्वेज कह ली तो कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम किया है, जिहदे विचकार कोई मिक्स कर नहीं सकता। तुहानू बाणी पढ़ोगे उपर सिरलेख लिखिया मिलेगा, सोरठ महला पहला पंच पदे गुरु नानक साहब का शब्द है। ये 5 पदे हैं, अगे लिखिया 13, 5 नाल 13 का कोई ताल्लुक ही नहीं है। 13 का मतलब होता है इत्थे तक इस टॉपिक उत्ते गुरु नानक साहब दे इसे राग विच 13 शब्द ने। इस तरीके दे नाल उन्होंने सारी गिणतियां पा के लॉकअप करते हैं, उपर वह सिरलेख लिख देंगे ने, अंदर वो रहाओ लिखते हैं। जे 2 रहाओ ने तो रहाओ दूजा लिख देंगे ने। पहले रहाओ भी सवाल करते हैं, जिन्होंने शब्दों च एको रहाओ होंदा उहदे सेंट्रल आइडिया भावार्थ होंदा है। जिहदे विच 2 रहाओ होंदे उन्हां दे पहले रहाओ विच क्वेश्चन छेड़ते हैं, रहाओ दूजा विच उहदा उत्तर देंदे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, जिमें आसा की वारी च भी पौड़ियाँ ने, जपजी साहब 38 पौड़ियाँ ने, 2 श्लोक ने पौन गुरु पाणी पिता ते उपर सब तो पहला आद सच जुगाद सच। इस तरह सुखमनी साहब विच 24 अष्टपदियाँ ने और हर अष्टपदी के उपर एक श्लोक लगा हुआ है। कैसा सुजान सियाणा डिवाइन इंटलैक्ट कि जिहदे विच चोर वड़ नहीं सकता, इनू मिक्स नहीं कर सकता। ये गुरु नानक साहब की सोच सी कि अज तक हज़ारां सालों तो जिहड़ा सच बोलिया जाता है वो बोलण वाला लिखदा नहीं है, जे लिखदा है तो उहदे विच कोई मिक्स कर दिंदा है, जां लिखण वाला और बोलण वाले का टाइम डिफरेंस हुंदा है तां कोई मिक्स कर दिंदा है। गुरु नानक साहब ने सारी दुनिया की इस गल नूं समझिया, लोकां दा दर्द समझ के की कीता, बाणी की बनतर इस ढंग नाल लिखी कोई मिक्स ना कर सके। भाई गुरदास जी कहते हैं आसा हथ किताब कुछ अपने कोल रखते सन, जिहड़ी बाणी लिखते सन उहदे कोलों अवेसले नहीं सन होंदे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। चढ़िया सोधन धरत लुकाई, गुरु नानक साहब सारी दुनिया नूं सच दसण टुरे ने, तो जिस बाणी दे राही सच दसदे ने, कहानियां नाल सच नहीं दसदे ने। गुरु नानक साहब मक्के गए, गुरु नानक साहब बगदाद गए, गुरु नानक साहब इराक गए, गुरु नानक साहब पंजाब विच गए, गुरु नानक साहब दक्षिण वाल गए, पश्चिम वाल गए। ये नाल नहीं सुनिया मिलता, सुनिया मिलता उत्थे जाके की किया, बाणी उचारी। वो बाणी असी मिस ही कर जाते हैं। क्यों सानू कहानियां दा शौक है। फिल्मां जो देखते हैं, फिल्म देखी, एक हीरो है एक हीरोइन है, विचकार विलन आ गया, झगड़ा होया, फिर विचकार लड़ाई हो गई, फिर मम्मी पापा नालों लड़ पे, फिर अल्टीमेटली सारे मिल गए, तो फिर वो सुखी रहने लगे। दी एंड। असी भी घर चले जाने, वो भी कहते हैं दी एंड। हुण दी एंड थोड़ा ना शुरू होया, हुण तो मिलाप होया, हुण जिंदगी शुरू होएगी। हुण किहड़े भाव जिंदगी विकदी है, आटे दाल दे भाव हुण पता लगणगे। दिन रात कैसा जीवन है। सानू उत्थे कहानी जिथे दी एंड होंदी है उत्थे तक बड़ा चंगा लगता है, पर दरअसल कहानियां सुनन तो साडा मन इस तरीके नाल बन चुका होया है कि असी अगला सुनना नहीं चाहते हाँ, बड़े खुश होके घर चले जाते हाँ। गुरु नानक साहब मक्के गए सन, गुरु नानक साहब रीठा साहब गए सन, बस इतना ही सुन के। वो गुरु नानक साहब का इतिहास है, पर इतना सुन के ना चले जाइए।
इस गल नूं पल्ले विचों बन्नीए कि जे पंजा साहब गए सन तो गुरु नानक साहब मेरे हिरदे ते भी अपना सच दा पंजा लाओ ना, मेरा भी हंकार तोड़ो ना वली कंधारी वांगू। धन गुरु नानक करके आज ये पंजा लाया सी बस। ये तो उसी कहानी वांग हो गया, दी एंड। क्या की सी, समझाया की सी। उजे रीठे मिठे गए जी, रीठे सारे मिठे ने, चारों पासे जितने पेड़ ने उन्होंने चो तोड़ के खा लो। पर सुनिया की दिता सी, जे गुरु नानक दे कोल बह के रीठा भी मिठा हो सकता, तू रोज बाणी पढ़ना, तू क्यों गल्लां कढ़ना, तू क्यों भैड़े बोल बोलना, तू क्यों छिथा पहनना, तू क्यों कौड़े बोल बोलना, तू क्यों नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए करना। रीठा मिठा हो सकता, तू नहीं हो सकता। ये सुनिया है। सो असी ना बाणी दी बनतर समझिया करिए। सुखमनी साहब दे ऊपर जिहड़ा श्लोक लगा है, 8 पदे लिखे हुए ने, हर पदे तो बाद गिनती लिखी हुई है, अष्टपदिया, 8 पदों वाली सुखमनी साहब। हर अष्टपदी के ऊपर एक श्लोक लिखा होया है। श्लोक उस अष्टपदी का सार होंदा है, तत्त ज्ञान होंदा उहदे विच सारा, जो अष्टपदी दे विच गुरु साहब खोलते ने, उसका विस्तार करते ने। जे कोई किसी को कह दे मैंने साउथ इंडियन डिश खानी है, यह हो गया ऊपर श्लोक। अब विस्तार करेंगे साउथ इंडियन डिश में क्या क्या होता है, वरना पता ही नहीं है साउथ इंडियन डिश में क्या होता है। वो गुरु साहब, मैं अज की लैंग्वेज बयान कर रहा इस गल नूं। श्लोक विच गुरु साहब पूरी गल दा सार समझाते हैं, अष्टपदियां दे विच उसनूं खोलते हैं, ते किसे किसे अष्टपदी विच 6वें पदे तो ही उस गल नूं, उस दे डेस्टिनेशन नूं, उस देश तक पहुँचाने की गल पूरी तरह खोलनी शुरू कर देंगे ने। अदरवाइज 8वें पदे विच सच दा पूरा वो वाला मैसेज होंदा जो गुरु साहब कहना चाहते हैं। जिमें कि असी पढ़ते हैं ब्रह्म ज्ञानी की अष्टपदी, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। उस इंसान का मन सच्चा हो जाता है, मुख सच्चा हो जाता है, जो सब जगह रब जी नूं देखता है, रब जी तो इलावा होर किसी नूं नहीं देखता। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दोए दोए लोचन पेखा हो, हर बिन अवर ना देखा, चारों पासे उन्होंने रब जी नज़र आते हैं, इस तो इलावा उन्होंने होर कुछ नज़र नहीं आता। जै तिर देखा तो तिर मौजूद रब जी नज़र आते हैं। अगली पंक्ति उचारते ने, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये वाले लक्षण, ये वाले चिन्ह, ये वाली क्वालिटीज़ कैसे प्राप्त होती हैं? ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल। अच्छा गुरु साहब, मैं तो सोच रहा सी ब्रह्म ज्ञानी किसी मनुख नूं कहंदे ने। हुण गुरु साहब ब्रह्म ज्ञानी की पूरी अष्टपदी उचारते जाएंगे, अगे आके अपनी गल ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन देंगे। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। साडा मत्था ठनकिया, ओ माई गॉड। गुरु साहब मैं तो अपनी जगह सोच रहा सी ब्रह्म ज्ञानी कोई मनुख होंदा है, पर मनुख सारी सृष्टि का करता नहीं हो सकता। अच्छा तुसी ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन समझा रहे हो, ब्रह्म ज्ञानी समझा रहे हो कि ऊपर श्लोक में जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी क्या वो किनू कहते हैं? लोकी ब्रह्म ज्ञानी मनुख नूं समझते हैं। अगे चल के कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, मनुख परमेश्वर नहीं हो सकता। मनुख परमेश्वर दे रब जी दे गुण लैंदा है, लै सकता है,
हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए दे गुण लै सकता है, परमेश्वर नहीं बन सकता, सारी सृष्टि का करता नहीं बन सकता। सारी सृष्टि का करता सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है सब मेरे समाए। सारी सृष्टि का करता आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। सारी सृष्टि का करता क्रिएटर करता पुरख अकाल मूरत है, अजूनी है, सहभंग है। जिस इंसान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ इंसान ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ है, ਰੱਬ जी ਦਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੈਭੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ। जे अचानक एक श्लोक चुक लीए, अचानक एक पौड़ी चुक लीए या एक पदा चुक लीए, सानू भुलेखा लग सकता है। तो असी किसी मनुख को ब्रह्म ज्ञानी समझ के उन्होंने पूजते रहांगे, उहदियां फोटोआं घर टंग लांगे, उन्होंने हार पाने शुरू कर देंगे। 200 साल बाद या 2000 साल बाद वो एक देवता ही बन जाएगा, वो एक रब जी बन जाएगा, एक खुदा ही बन जाएगा, लोग उन्हें पूजन लग पैणगे। गुरु नानक साहब ने सारी दुनिया को शब्द गुरु नाल जोड़िया। इस करके बाणी की बनतर जरूरी है। अज दे शब्द की बनतर नूं समझिए। सीरी राग की वार, ये वार है जिहड़ी सीरी राग की है। सीरी राग की वार महला चौथा गुरु रामदास पातशाह जी की वार है। वारां पहला पौड़ियां होंदियां सी, सिर्फ वारां दे नाल रलवें ख्याल दे श्लोक उन्होंने खोलण वास्ते, जिस तरह असी सुखमनी साहब का श्लोक समझिया ब्रह्म ज्ञानी का, उन्होंने खोलण वास्ते गुरु साहब ने पदे उचारे अष्टपदी विच, इस तरह वार नूं समझण वास्ते नाल गुरु पातशाह ने कुछ श्लोक लगाए। जिवें आसा की वार विच श्लोक भी मैले पहले के लिखे, नाल पौड़ियां गुरु नानक साहब दियां ने आसा की वार विच, ते श्लोक नानक पातशाह तो इलावा गुरु अंगद पातशाह दे गुरु अर्जन पातशाह जी ने दर्ज किए। बाणी इस तरीके नाल लॉकअप करते हैं। एक टॉपिक, एक राग, इको गल बार बार उस टॉपिक नूं खोलिया, उसी टॉपिक के बारे उसे राग विच गुरु नानक साहब गल करते हैं, फिर गुरु अंगद पातशाह, फिर गुरु अमरदास पातशाह, फिर गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन पातशाह। इस तरह करते करते गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी तो बाद उसे राग विच उसे टॉपिक विच जदों गल छिड़ेगी, हुण आएगी बाणी भगतां की, कबीर साहब का शब्द आएगा। देखना घर जाके बाणी पढ़ना। इस तरह जदों सारे दे शब्द मुक जाएंगे, उत्थे टोटल लिखिया होएगा। ये सारे जितने नौजवान मुंडे कुड़ियां ने, ये सारे मैनू कहते ने वीर जी जेकर कोई इंसान बाणी की बनतर नूं समझ जाए और समझन तो बाद उहदी ग्रामर नूं भी समझ जाए और समझन तो बाद उहदे रहाऊ नूं भी समझ जाए, अते फिर सारा कुछ समझ के जे वो शरारत करे ताला तोड़न दी, ਇਹਦੇ अंदर मिक्स करन दी, तां कर सकदा ना, क्योंकि उन्होंने पूरी अकल है। मैं इन्होंने बेनती की, जिहड़ा सारी बनतर समझ के बाणी दे भाव अर्थां नूं समझदा जाएगा ना, वो पता की है, जिवें लूण समुंदर अंदर गया गवाची गया, उहदा जीवन ही बदल जाएगा। वो चोरी करन दी बजाय इत्थे आके सतगुर अगे टैप हो जाएगा। इंज ही तो हुंदा सी नानक पातशाह वेले, इंज ही तो हुंदा सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वेले। सूइए आंदे सन, चोरी करन वाले आंदे सन, और कुछ ना कुछ विचकारों गलबात करन आंदे सन। आके सुनते सी ये की दस रहे ने, जीवन उन्हां दा बदल जांदा सी। इहदा मतलब बाणी दी बनतर असीं जरूर समझिया करिए। बनतर समझण दे नाल सानू उस दिशा संकेत ज़्यादा मिलते हैं जो गुरु साहब कहना चाहते हैं। आई डोंट मीन फाइनल मीनिंग हो गए, कोई भी फाइनल मीनिंग नहीं कर सकता। हाँ, पर असी जे कह दिए जी ये बाणी अगाध बोध है, ये जिहड़ी सतगुरु जी ने उचारी है वो ही जानन, असी ते दुनियावी जीव हाँ, असी ते 100 झूठ बोलने होंदे ने, बिजनेस विच कुछ करना होंदा है गड़बड़, झूठ बोले बिना काम नहीं चलते ने, इस करके असी नहीं इनू समझ सकते। फिर तो रुमालियां थल्ले ही रह जाएगी।
रुमाला असी सत्कार वजों चढ़ाते हाँ, पर रुमाला खोल के पढ़ना भी है। जिन्होंने वो नहीं गल समझ आती ना, वो आंदे ने मस्या पूर्णमाशी संगरांद है, दिवाली वाले दिन, रखड़ी वाले दिन आके इत्थे मत्था टेक के किसी पीड़े नूं किसी जंगले नूं रखड़ी बन बना के चले जाते हैं, पीड़े नूं घुट घटा के चले जाते हैं, या पिछों आके भाई साहब नूं कहंदे ने चौर दे दिओ मैं इस तरह करके चला जाऊँगा, या कहंदे ने भाई साहब जी दर्शन करा दिओ मेरे घर गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, वो जरा जिहा इंज रुमाला चुक के दिखा देंदे ने, वो देख के चले जाते हैं। ये नाल कुछ नहीं होंदा। कौन कहता है? गुरु साहब कहते ने सतगुर नो सबको देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। असी शब्द विचार कीती नहीं, असी पता की कीता, रुमाला उपर ही रहन दिता, होर वधिया वधिया रुमाले लिया के पा दिते, खोल के उन्होंने पढ़िया समझिया ही नहीं, अते दिवाली वाले दिन नेड़े मोमबत्तियां जगा जगू के ते अपनिया टैक्स दियां किताबां नेड़े रख के केसर दा टिक्का किताबां नूं लगाया, फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं छुआया, चलो जी मेरा सारा पाप कर्म दूर हो गया, हो आया दूरों चल के, टैक्स की मुश्किल पैंदी है, चलो हुण छुड़ाओ मनु। जिचर शब्द ना करे विचार तेरा कुछ नहीं हो सकता। इदा नहीं कोई हेरा फेरियां नहीं चलदियां ने, उत्थे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। एक रोज़ पढ़ते हरमंदर साहब तो शब्द आंदा है, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत्र। सच्चा तख्त है, किसी का पक्षपात नहीं करता, सच ते खरे दी गल करता है गुरु ग्रंथ साहिब। सो अज दी बाणी दी बनतर विच लिखिया होया है, उपर वार गुरु रामदास पातशाह जी दी है लिखिया होया महला पहला। ये गुरु अर्जन पातशाह ने वारां दे नाल पौड़ियां जोड़ियां। इस वार नूं जदों घर जाके पढ़ोगे, इस वार दे विच गुरु नानक पातशाह जी दे श्लोक दर्ज हन। वार पौड़ियां गुरु रामदास जी दियां हन, पर गुरु नानक पातशाह दे शब्द श्लोक हन, गुरु अंगद पातशाह दे श्लोक हन, गुरु अमरदास पातशाह दे श्लोक हन, अते गुरु अर्जन पातशाह दे श्लोक एक उन्हां दा भी दर्ज है, जो कि यह शो करता है कि जदों ये वार लिखी गई सी गुरु रामदास पातशाह वालों लिखी गई सी, ते गुरु अर्जन पातशाह दा श्लोक उस वेले मौजूद नहीं सी। जे गुरु अर्जन पातशाह का श्लोक मौजूद नहीं सी, क्योंकि गुरु अर्जन पातशाह गुरगद्दी ते बैठे ही नहीं, नानक पाद उचार के बाणी उचार ही नहीं सकते ने। साध संगत मैं वो लॉजिक पेश कर रहा जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की बनतर के मुताबिक है, नॉट बारलियाँ किसी भी पुस्तक दियाँ लिखिया हुई कहानियाँ मुताबक, पर किसी लिखिया पुस्तकों दियाँ कहानियाँ मुताबक सानू प्रचारक ते कथाकार पिछले कितने 100 साल तो सुना रहे ने। जब गुरु अर्जन पातशाह जी ने ग्रंथ तैयार किया, उस वेले उन्होंने तैयार करने वेले पोथियां की लोड़ पई, ते पोथियां उन्होंने मिलन कित्थों? पोथियां बाबा मोहन दे घर पईयां सी, बाबा मोहन देंदा नहीं सी। उन्होंने उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने भेजा, फिर वो बाबा मोहन जी देन ना, फिर गुरु अर्जन पातशाह आप गए, फिर गुरु अर्जन पातशाह ने क्या मैनू पोथियां दिओ। उन्होंने उसनू क्या मोहन तेरे ऊँचे मंदिर, वह नाम बाबा मोहन जी सी, उन्होंने क्या मोहन तेरे ऊँचे मंदिर, उन्हें अल्टीमेटली पोथियां दे दी। साध संगत ये बिल्कुल गुरमत नहीं है, ये उस इतिहास की साखी नहीं बनती जो गुरु ग्रंथ साहिब की बनतर नू देख के समझ आती है। गुरु ग्रंथ साहिब की बनतर सानू नहीं समझ आई, इस करके सानू अज तक वो टेपां बनियां सुनन नूं मिलदियां। अज तक वो वड्डे वड्डे रागी नामी प्रचारक जिन्हों बहुत वड्डा करके असीं मनदे हां, वो सानू इन्हां स्टेजां विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठ के सुना जाते रहे हन, सुना देंदे हन अज तक कि गुरु अर्जन पातशाह गुरु रामदास जी दे कहण ते लाहौर चले गए। लाहौर जाके उन्होंने क्या सी, जदों तक ना बुलाइए आना ना, वो आना चाहते सी, मिलना चाहते सी। उन्होंने पहली चिट्ठी पाई, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, वो प्रीति चंद ने फड़ ली। यही कहानी गलत है, इसनू गलत कहन वास्ते मेरे नाल सहमत ना होना,
आप बाणी पढ़ के देखना, जिस बाणी की बनतर की मैं गल कर रहा। उन्होंने दूजी चिट्ठी पाई, वो भी प्रीति चंद ने फड़ ली, तीजी भी फड़ ली, फिर चौथी चिट्ठी प्रीति चंद तो पहला पकड़ी गई, गुरु पातशाह को पहुँच गई। गुरु पातशाह ने गुरु अर्जन पातशाह को उतों बुला लिया। हुण कोई पूछे, जदों हुणे गुरु रामदास जी गुरगद्दी ते ने, गुरु अर्जन पातशाह बाणी उचार ही नहीं सकते ने। इस लॉजिक ते कि जदों गुरु अर्जन पातशाह गुरगद्दी ते होंदे ने तां शब्द उचारदे ने, तां बाणी उचारदे ने, तां नानक पद लगांदे ने, नानक पद लगाण दा हक मिलदा है। ते ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हुण जदों बाणी दी बनतर देखांगे, असीं जदों साडीआं दो पुस्तकां बणीਆਂ जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 ਅਤੇ 2, उन्हां विच असीं 16 शब्दां दे श्लोकां दे अर्थ सांझे कीते होए ने। उस शब्द नूं असीं अर्थ करन वेले कई बारी सानूं बड़ी मुश्किल आती है। लफज भी समझ आ रहा है, उहदी डिक्शनरी भी देख ली, महान कोश भी देख लिया, ग्रामर भी पढ़ ली, रहाओ भी पढ़ लिया, फिर भी मुश्किल जे होवे, कन्फ्यूजन जे लगे तो असीं की करदे हां, पिछले कुछ शब्द पढ़ते हैं, अगले कुछ शब्द पढ़ते हैं, फिर होर पिछे जाते हैं, जिथों पहली गल गुरु नानक साहब ने शुरू की सी उत्थे तक जाते हैं, तो शब्द की गहराई तक जाण दा सानू चांस मिलता है कि टॉपिक की चल रहा है। जिवें असीं मैले 9वें दे श्लोकां दी CD है 1257 श्लोक 15 दिनां समझे, तो पहले 2 दिन असीं यही समझते रहे बाणी की बनतर किस तरह है। गुरु नानक साहब इस लड़ी विच की कहंदे ने, श्लोक 12 ते वधीक, मैला पहला, वो जितना पिछे गए सानू मैले 9वें दे श्लोक समझण वास्ते आसानी हो गई। इंज जदों असी मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलावल महला 5वां दे शब्द पढ़ते हैं ना, बिलावल राग दे, तो वो सारे ना रब जी दी, गुरु जी दी प्रीत दे बारे ने। उस लड़ी विच गुरु अर्जन पातशाह ने जदों आप गुरगद्दी ते सन, सच दी विचार करते ने, उस वेले शब्द उचारिया सी। ये शब्द लाहौर तो उस वेले नहीं उचारिया जदों गुरु रामदास पातशाह गुरगद्दी ते ने। भाग हुआ गुरसंत मिलाया कहता जी, उन्हें जो बुला लिया उन्हें क्या शुक्र होया तुसी मैनू मिल गए हो। इत्थे शब्द गुरु की गल की जा रही है, शब्द गुरु राही सच मिलता है। पर जिस इंसान नू शब्द गुरु समझ नहीं आता, वो इंसान हिपोक्रेट हो जाता है, वो इंसान अंदरों डरदा है, उसनू विकार सतांदे ने। यही अज दे टॉपिक विच गुरु नानक साहब कहंदे ने, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां। जो इंसान शब्द गुरु नू नहीं समझदा, शब्द गुरु का मतलब होंदा है सत गुर, सच्चा गुर, सच दी नॉलेज, यूनीवर्सल ट्रुथ। सारी दुनिया विच किसी नू क्रोध चढ़ेगा उहदा BP हाई हो जाएगा। क्रोध नू अंतर आत्मे दा मैसेज लैके कंट्रोल करन वाले मैसेज दुनिया के किसी भी मनुख नू समझ आए, उन्होंने सतगुर कहते हैं। वो यूनीवर्सल हो गया, उपदेश चौवरना को साझा हो गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो मर्जी अपना क्रोध ठीक कर ले, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, कोई भी ना हंडाए। जो नहीं हंडाना चाहता, जो गुस्से नाल दुखी है, रोग लगता है, देही रोग ना लग गई, वो सतगुर की मत लै ले। इस तरह सतगुर यूनीवर्सल ट्रुथ दा सुनेया जे नहीं लैंदा, पता की होंदा है, अंदर धोखा, अंदर धोखा वड़ जाता है। ते जे कर सच की गल ना लवो, तू डरपोक भी हो जाएगा, हिपोक्रेट भी हो जाएगा। हिपोक्रेट होने वास्ते बारों बारों दिखाएगा मैं धर्मी हाँ, मन होर मुख होर, बारों बारों दिखाएगा। फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल, दिल काती, दिल अंदर कैंची चल रही है, गुड़ बात, बारों बारों मिठा बोलता है, बारों बारों मोमो ठगनी करता है। ये बीमारी अंदर बढ़ जाएगी, अंदर धोखा। हुण पता तेरा नुकसान क्या होगा, नींद ना सोवे, नींदर नहीं जे आएगी, चैन दी नींदर नहीं आएगी तैनू। क्यों? तेरे अंदर धोखा है। अंदर दा धोखा अंतरजामी रब जी कढ़ सकते हैं। इन्हां बच्चियां सारिਆਂ नाल मैं सांझ करदिया पुछदा, अच्छा बताओ रब जी अंतरजामी कैसे है? ये सारे अपने वालों कोई ना कोई जवाब देंदे ने।
मैं तो सीखता ही इंज आ, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आस पास सारी दुनिया ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, रिक्शे टांगे वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, झाड़ू मरदार करने वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, भांडे मांजन वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, अच्छा इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, अल्टीमेटली ਅਸੀਂ फिर सांझ करते हैं कि रब जी मेरे अंदर वसते ने, मेरा मन जो भी सोचता है नाल दे नाल सुनते ने, देखते ने, अंतरजामी ने। मेरे अंदर जो ख्याल पैदा होता, हुण बाहरों मैं की कर रहा, बड़ा शरीफ नज़र आ रहा हूँ, आई लुक लाइक पायस, आई ट्राई टू शो ऑफ रिलीजियस, बहुत धर्मी हूँ, धर्म का बुर्का ओढ़ा हुआ है, देखो मुझे धर्मी समझो, मैं पूरा पेक बनाया, वेसी शो ना पाइए, बाहरों पेक ना बना, बाहरले पेक नाल नहीं मिलणगे, देख इस तरह नहीं हो सकता। सुखी होना चाहता है अंदर की गल कर, क्योंकि अंदर रब जी बैठे ने, रब जी तो छुपा नहीं सकते, दुनिया को छुपा सकता है, दुनिया को मूर्ख बना सकता है, अपने आप को नहीं बना सकता। इस करके एक बार एक स्टेटमेंट मैं पढ़ी सी, वो कहता यू कैन मेक द पीपल फूल, तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक फूल द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर। शीशे के पीछे कौन खड़ा है? तू अपने आप को नहीं मूर्ख बना सकता। अपने आप कौन है? रब जी अंदर बैठे, रब जी को पागल नहीं बना सकता। लोगों नाम खिलौना जाना, पागल बनाते हैं लोग की, पर रब जी खिडौना नहीं ने। रब जी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगों देखा है, पिछों देखा है, तुझ ते कहाँ छिपावे, तेरे को नहीं छुपा सकते। इस फंडामेंटल नू रब जी दा अंतरजामता कहते ने। यही श्लोक पवन गुरु पाणी पिता दे अंदर त्रकड़ी लगी हुई दसी है कि तेरे अंदर पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दोई दाई दाया खेल है सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै। एक सज्जन ने पूछा सी वाचै इंग्लिश का लफज है? उन्होंने कहा सी नहीं, कहता नहीं वाच, वॉचमैन, वाच है। उन्होंने कहा नहीं, एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का लफज है और इंग्लिश नहीं है। इट्स नॉट बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। कहता फिर ये की अर्थ ने? मैंने कहा जी आएगा पंडित वाचै पोथियाँ, वह की मतलब है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। वाचै का मतलब होता है अंदर बैठा जिहड़ा मेरा हर प्रभ अंतर बैठा वेखै जियो, वो अंदर बैठे ने वेख रहे ने, उन्होंने कहते हैं गुरबाणी की लैंग्वेज अंदर बैठे ने धर्म जी, अंदर बैठे ने धर्म राय जी, अंदर बैठे ने धर्म राज। बाहरली किसी पावर नू किसी जगह बैठी हुई नू धर्मराज गुरमत नहीं मनती है। अंदर बैठे धर्मराज है, वो अंदर बैठे धर्म राय जी देख रहे ने, जैसा देखते ने वैसा ही बोल देंदे ने, वैसा ही उचार देंदे ने। उन्होंने की कहते हैं, करमी आपो अपनी के नेड़ा है कि दूर, तू दुखी है, तेरे अंदर दे कर्म बोल रहे ने। रब जी ने बोल दिता अब तेरे सारे शरीर जग के ऊपर तू दुखी रहेगा। कोई भी इंसान दुखी होए ना, ओदे सामने खड़े होकर इंज पूछना, अबे खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके। ऐसे ही डर रहा है मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। अपने ख्याल में फंसिया है। अपने ख्याल तेरे जड़े ने वो बाहरों दिखा रहे हैं मैं बड़ा पायस हाँ, बड़ा शरीफ हाँ, अंदर बैठे रब जी देख रहे ने। तू जिथे मर्जी धरती ते चला जा, वो अंदर वाले रब जी तेरे नाल जाणगे ना। इनू कहंदे ने रब सब जगह हाजिर नाजर है। मैं चोर हाँ, मैं दिल्ली गया चोर हाँ, मैं लाहौर जेड़े लाहौर भैड़े पेशौर भी भैड़े है ना जी। जिथे भी चले जाओ दुनिया के जिस मर्जी कलोनी शहर ही चले जाओ, एक शहर तो धोखा मार के दूजे शहर ही चले जाओ, नाल अंदर धोखा भी चला गया, नाल अंदर रब जी भी चले गए, वो अंदरों लानत पाते ने। शीशे अगे खड़ा होंदा कहंदा वैसे मारिया तो मैं धोखा है, पर शक्ल अपनी संवारदा पिया कॉस्मेटिक्स लगा के, धर्मी बन के, पेक दिखावत जगत को लोगन को बस कीन करदा पिया। गल्लें ऐसी चंगियां, बाहरों गल्लां करना है, अचारी बुरियां। योर अचार योर करैक्टर इज़ नॉट चंगा, दैट इज़ बुरा। ये रब जी अंतरजामी तेनों अंदरों कैच कर लेंदे ने, ये तू रब जी तो दूर हो जाता है।
कि नेड़ा कि दूर। साध संगत जी, साडा इस पासे ख्याल कदी नहीं पिया कि मैं अपने अंतरात्मे झाँका। क्यों नहीं पिया? क्योंकि अनु शब्द ऐसे वाले सुनाए जाते हैं जिन्होंने बच्चे कहा जाए आओ इतने गुरु ग्रंथ साहब को सब कुछ मंग लो, मोटर मंग लो, कार मंग लो, बंगला मंग लो, पैसा मंग लो, सीमेंट मंग लो, धियां पुत्र मंग लो, रिश्ता मंग लो, तो कंपनी च नौकरी उपर चली जाए ये मंग लो। तो असी सानू ये कहा गया, असी वो मंगन आ गए। हुण वो मंगन वेले ध्यान थोड़ा पिया कि मैनू अपने अंतरात्मे भी झातना है कि मैं की हाँ। इस करके कभी भी अंतरात्मे झातन की गल ही नहीं छिड़ी, निशाना ही चुकवा दिता, एम ही खराब करवा दिता। बजाय इसदे कि असी खुल के कहिए ये दुनियावी चीज़ां मंग के मिलदियां हन के नहीं। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिस दिन सो पावे वो पता की है, सदा सिफत। कारां दी गल नहीं चल रही, स्कूटर कार बिजनेस फैक्ट्रियां दे चढ़ जाने की गल नहीं चल रही। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल दा मैना। लोगों को कई बंदे कह देंगे ने, 100 कार्ड ब्रह्म ज्ञानी कह देंगे ने, अपनी फैक्ट्री टांग लो, अपने ऑफिस टांग लो, अपने घर टांग लो, तुहाडे घर लहरा बहरा हो जाएंगे पैसे दियाँ। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च। ये शब्द अखुट इज़ नॉट मनी, शब्द अखुट है सच का ज्ञान। पर लोग उन्होंने पसंद है, लोग लाई रखते हैं। गुरु साहब कह रहे ने तू देख अंदर दी गल नूं समझ, अंदर रब जी बैठे ने, उन्होंने तू धोखा दे नहीं सकता। शीशे पीछे तू खड़ा है, तेरे अंदर रब जी खड़े ने, रब जी तो धोखा दे नहीं सकता। रब जी अंतरजामी ने, उन्होंने तो ना छुपा, अगों देखा पिछों देखा, तू इतने कहाँ छुपावा, उन्होंने तो ना छुपा। ये हिपोक्रेसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तू दुखी हो जाएगा। गली असी चंगिया चारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां, ए मनो कुशुद्धा कालियां ने, इन्हां दी गल की जा रही है। पर साडा ध्यान क्यों नहीं पैंदा? इस करके कि सानू रब जी दसे गए ने एक दिन मर जाएंगे, मरने के बाद आसमान पे जाएंगे और भगवान जी के घर ससुराल जाएंगे। साध संगत जी, मैं सेंटेंस जान के इस तरह ही बोलदा, बार बार बोलदा, एक दिन मर जावांगे तो रब जी के घर ससुराल जावांगे। ਉਹਦਾ मतलब ये हो गया, सारी दुनिया ने कहना शुरू करता ये जग मिठा अगला के मीठा, देखा जाएगा भगवान के घर जाएंगे। अभी तो सब हेरा फेरी करो ना, अभी तो परसोना झूठ का लगा लो ना। गुरु साहब कहते ने अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बारों बारों तो तू बड़ा लगना, तू मर गया है उसी वेले मर जाता है जदों तू धोखा करना है। शरीर तेरा नज़र आता 70 80 90 100 साल जींदा रहेगा, लोग तेनू धर्मी कहते रहनगे, पर तू मेरे पाने उसी वेले मर गया। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, बारों बारों दिखाना ना मर गया। मत कोई जाने जग जीवदा आप दूजे भाई मुयास, उसी वेले मर जाते हैं जदों दूजे भाव च फसदे हैं, कुछ होर आके जदों मंगते हैं। किस तरह मरते हैं? मनु साइकिल चाहिए है, मर गए। किस तरह? साइकिल तो बाद हुण स्कूटर आ गया, हुण साइकिल नहीं चाहिए है, हुण स्कूटर चाहिए है। फिर दोबारा मरण आए, फिर स्कूटर तो बाद हुण कार आ गई है, मारुति 800 आ गई है, मारुति ले दो ना। यही अरदास करन आते हैं ना, यही सिखाई गई ना, इत्थे आके मंगो। कितना भुलेखा, कितना कन्फ्यूज किया गया। मरने के बाद भगवान जी के घर जाएंगे, इस करके साडा इस जीवन में ध्यान पिया ही नहीं। ये वाले प्रेजेंट जीवन में असी अपना सारा जीरो कर लिया, बिल्कुल हिपोक्रेट कर लिया। गुरु साहब कहते हैं जीवंदिया मुक्ति हो सकती है, तेनू रब जी दे नाल अज मिलावा शेख फरीद हो सकता है। तू अज दी गल करना, वो जिहड़े रब जी नू मिलना चाहता तेरे हिरदे च वसदे ने। तेरा मन काला हो गया है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी की है। उन लोक अवगुणा की बनना है गंठड़ी, गुण ना व्याजा कोई। नानक अवगुण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर, तेनू फाई पै चुकी है जमा दी जम विकार। विकार ही कालक होंदे, विकार ही हनेरा होंदा, विकार डीमनस थॉट। जम जींदे जी तेनू चमड़ चुके ने, मरण तो बाद कोई जम होंदे हन के नहीं। हुणे जदों असी मरांगे, मरण तो बाद जिहड़े जम मिलणगे वो देखा जाएगा। एट प्रेजेंट जम चंबड़े हुए ने की शो ऑफ, हिपोक्रेसी, दिखावा। माई गुडनेस, तू की कर रहा है? तू धर्म का ठेकेदार बनया फिरदा है। ए जी इंज इत्थे कर दो, इंज इत्थे कर दो, गोलक इंज रख दो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तू इन्हां सारे चक्करां च पिया रहना है। ये साडे ना बाहरले दिखावे का सत्कार है। सत्कार अंदर होंदा है
कि ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, अपने मन की मैल लानी। अदरवाइज वो होंदा है सीस निवाया क्या थी अजारी दे कुछ उदे जाए। यही गली असी चंगियां अचारी बुरियां। इस गल नूं थोड़ा थोड़ा समझते जाइए ना, साडा मन थोड़ा द्रवदा जाएगा, सानू नम्रता आती जाएगी, साडे मन की कालक मिटती जाएगी, जन्म जन्म की जिहड़ी मैल है वह मिटती जाएगी। इंज मिटदी है जन्म जन्म की मैल। ये जन्म जन्म की मैल का मतलब ही विकारी सोच नूं कहंदे ने। जे असी कहिए जन्म की मैल पिछले जन्म की मैल है, मेरे अंदर कुत्ता है, कुत्ता तो कदे हिपोक्रेसी नहीं करता। तुसी कुत्ते नूं जिन्ना मर्जी पढ़ा लो, तेरा जन्म सफल हो जाएगा, भगवान जी तेरे को मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तेरे को एक कंट्री का प्रेसिडेंट बना देंगे, सारी दुनिया का प्रेसिडेंट बना देंगे, लाखों करोड़ों तेरे को दे देंगे, तू बिल्ली की तरह म्याऊं कर। वो कहेगा नहीं मेरा स्वभाव कुत्ता है, मैं भौंकना ही है। बिल्ली नूं को तेरे को कुत्ता बना देंगे, वो कहती नहीं 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 जैसे है। इसी करके कभी भी कोई कुत्ते बिल्ली नूं पकड़ के नहीं कहता ओए कुत्ते कुत्ता बन, ओए बिल्ली बिल्ली बन, ओए खोते खोता बन, उन्होंने कोई नहीं कुछ कहता। वो तो अपने जन्म ही सच्चे ने खरे ने, वो तो बिल्कुल भी रब जी की पूरी रजा भी अपने सुभाच ने जैसे ने उंज ही करते ने। इसी करके इंसान नूं क्या करतूत पशु की मानस जात बन के तू की दिखा रहा, ओए इंसान इंसान बन। क्यों इंसान हिपोक्रेसी करता है। सो जन्म जन्म की माल लागी कुत्ते वांगू असी तो नहीं हाँ। जे पिछले जन्म का होंदा, जे पिछले जन्म का सप होंदा तो सप किसी का वसा नहीं खाता, सप हर किसी नूं डंग मार देंदा है। कुत्ता बिल्ली घोड़ा सप जितने भी पिछले जन्म दियां गल्लां असीं करदे हां वो सारे तो अपने सुभाਅ 'ਚ ही रहंदे ने। अज भी देखो तो अपने सुभाਅ 'ਚ ही रहंदे ने, कदे भी धोखा नहीं देंदे ने। देखो अज भी कुत्ता धोखा नहीं देंदा, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नीत। अपने मालक नूं कदे नहीं छड्डदा है। मालक नूं कौन छड्डदा है? मनमुख दूजे पाए वाला, जिथे फायदा होया चार सिक्के ज़्यादा मिले उधर टुर जाता है। ये तो मनमुख हेरा फेरी करता है। मनुख नूं कहना पैंदा तू केड़ा हिपोक्रेसी कर रहा, जिहड़ी विकारां दी हिपोक्रेसी है ना तेरू मैल लगी, इनू जन्म जन्म की मैल कहंदे ने। जितने विकार उतने जन्म की मैल तेरे को अभी लगी हुई है, उतने अवगुण तैनू चंबड़े हुए ने। तेरे कोलों बड़ा डर लगता है, तेरे कारण वड्डे वड्डे ताले लगाए जाते हैं, तेरे कारण बॉर्डर बनाए जाते हैं, तेरे कारण पासपोर्ट बनते हैं, तेरे कारण नारकोटिक टेस्ट होंगे ने, तेरे कारण सारी गड़बड़ होती है। जे तू अंदरों बाहरों सीधा हो जाए, है ना। गुरु साहब कहते हैं मनु कुशुद्धा कालियाँ, शुद्ध होंदा प्योर, कुशुद्ध बिल्कुल इम्प्योर, बिल्कुल फुल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटिड मन बन गया है। बिगाइलिंग कहते हैं उन्होंने इंग्लिश विच, डिसीटफुल कहते हैं। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ किवें देना है। देखते ना साडे बच्चे झूठ बोलते हैं, पर सिर्फ बच्चे ही झूठ नहीं बोलते हैं, पति पत्नी भी एक दूजे ने झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा भी झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया झूठ बोलती है। कुछ शुद्ध मन मैला हो गया, डिसीटफुल हो गया, बिगाइलिंग हो गया। हाउ टू मेक फूल अदर्स। मनो कुशुद्धा कालियाँ बाहर चिट्टियाँ, बाहरों बाहरों चिट्टे दिसते हैं। गुरु साहब कहते बाहरों चिट्टे दिसन नाल कुछ नहीं हो सकता। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो, उन्होंने चित्त कठोर हो जाता, वो पत्थर हो जाते हैं, सिल पूजस हो जाते हैं, भाव वो पत्थर ही बन जाते हैं। अंदर दे पत्थर दी ही वो फॉलो करते रहते हैं। अंदर उन्होंने पत्थर हो गया, जिन्हों का अंदर पत्थर हो जाए, जिनके चित्त कठोर हैं से बहना सतगुर पास, वो सच के नज़दीक नहीं बैठते हैं। क्यों? उथे सच वरतदा, चित्त कठोर वाले कूड़ियारां दा उथे सच वरतदा, कूड़ियारा चित्त उदास। तुसीं कदी भी नोटिस करना, 5-5 घंटे दियां फिल्मां लगियां रहन, असीं बैठे रहने हाँ। बरात एक मिनट दे बदले 10 घंटे लेट हो जाए असीं खड़े रहने हाँ। जेकर पार्टियां होण असीं रात दे 12-1 बजे तक बैठण नूं तैयार हाँ, पर शब्द विचार दे विच असीं बैठण नूं तैयार। टिच भोग पा देना जी, शब्द विचार कुड़ियारा चित्त उदास जो है चंगी नहीं लगती। पिछे एक ग्रंथी जी ने बड़े अफसोस नाल बड़े दुख नाल मैनू क्या, भुपिंदर सिंह जी आनंद कारज होने लगा, तुसीं पूरी घंटे डेढ़ की शब्द विचार करोगे। 2 हफ्ते पहला असीं रकाबगंज की है।
कहते भुपिंदर सिंह जी ये लोकी आनंद कारज करन आए ने, शब्द विचार करन नहीं आए। ये अपनी ज्वेलरी विखान आए ने, अपने लहंगे विखान आए ने, अपने महंगे कपड़े विखान आए ने, एक दूजे को बधाई देन आए ने, शब्द विचार थोड़ा ना सुनन आए ने। ये विआह का कारज करन आए ने। कारज सगल आरंभ्यो घर का, अपने अंदर का कारज करन नहीं आए ने। बड़े दुख नाल उन्होंने मैनू कहा, गुरु साहब कहते ने बारों बारों चिट्टे ना बनो। जो बारों चिट्टे ना, चिट्टे जिनके कपड़े, मैले चित्त कठोर जियो। उन्हों का ही मैला होंदा है जिहड़े बारों बारों बण बण विखांदे ने। रीसां करे तिनाड़ियाँ जो सेवेदार खड़ियाँ, जो रब नाल इकमिक ने, वो अपने अंतर आत्मे करके इकमिक है। तू वह बाहरला भेख नकल मार लेना है, बाहरला भेख नकल मारन नाल नहीं कुछ होएगा। तैनू अपना जीवन ठीक करना पेगा। अगे कहते ने नाल खसमे रत्तियां माणे सुख रलियां। जो रब नाल इकमिक ने वो सुख माणदे ने, उन्होंने आत्मक चैन मिलता है। नाल खसमे रत्तियां रब जी दे नाल, जेड़ी जेड़ी भी मन की मत नू त्याग के रब जी नाल इकम हो जाते सुख मानते हैं। पर तू बाहरों उन्हों की नकल मारदा है। वो एक टांग पे खड़ा था, उसने अपने केस ऐसे किल्ली से बांध लिए थे, वो ऐसे समुंदर के अंदर एक पाँव रख के, घास के बाहर एक पाँव रखा हुआ था, रेत के ऊपर ऐसे रखा हुआ था, इतनी माला फेरता था, इतने दिन खाता नहीं था, ऐसे करता था, ऐसे भूखा रहता था। ये सारिया जड़ियाँ गल्लां तू नकल मारना ना, इहदे नाल कुछ नहीं होएगा। एको धर्म दृढ़ है सच कोई, वो वाला सिख। किसी मनुख दा गोडे कुट्टण नाल कुछ फायदा नहीं होएगा। किसी बाबा जी, किसी संत जी दे डेरे ते जाके तू उन्हां दे गोडे कुटदा रवें तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्हां कोल जिहड़ा गुण है ना, उस गुण नू ले लै। जेकर उन्हां कोल गुण है, उस गुण नू कहंदे ने ढूंढ सज्जण संत पक्कियां। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़। जो जो किसी को अवगुण है उन्होंने कच्चा कहते हैं, जो गुण है उन्होंने सच्चा कहते हैं। सच्चा गुण कितों प्राप्त होता है? सतगुर कोलों। तो अल्टीमेटली तो तेनों सोर्स तो लेना पेगा ना, सतगुर का गुण ले लेना, सोर्स तो चला जाना। सब ते वड्डा सतगुर को ले लेना गल, जिहड़ा सारियां दा पिता है। नाल खसमे रत्तियां माणे सुख रलियां। तू बारों बारों नकल ना मारिया कर, रीसा ना करया कर। जो सच दे गुण लैने ने, सच दे गुणा दी सांझ करया कर। उन्हां दे नाल तैनूं भी खसमे रत्तियां वाली जीवन जाच समझ आ जाएगी। वो गुण रब जी तो मिलते ने, सतगुर तो मिलते ने। तू तो सतगुर दे इत्थे अरेंजमेंट करन आ गया, कमाल है। अरेंजमेंट कोई तो करेगा ही ना। पर जे अरेंजमेंट करने वाला भी नम्रता नाल कवे मानयोग ग्रंथी सिंह जीओ, तो नम्रता च है। पर जो ओए भाई होए, तो नम्रता च नहीं है। फिर वो अफसरी झाड़न आया, अपनी उच्ची जात झाड़न आया, अपने पैसे की आकड़ झाड़न आया। सतगुर की मत नहीं ले पाएगा। मनुख शुद्धा कालियाँ हो जाएगा, अंदर धोखा हो जाएगा। मिठा दी ना बोलेगा, नम्रता नाल नहीं ना बोलेगा, घर भी इंज ही बोलेगा। घर भी जाके कहेगा जान दो मैं कौन हाँ, इतने बंदे मेरे थल्ले काम करते हैं, मेरे हुक्म बगैर पत्ता नहीं हिलता। जे मैं गुरुद्वारे भी जाके प्रधान बना, मेरे बगैर कुछ उत्थे नहीं हिल सकता। तुसी भी सारे मनो। घर भी रोप चढ़ेगा, बुरा भला बोलेगा, वोटी नाल बोलेगा, वोटी बोलेगी तुसी गुरुद्वारे जाके तो धर्मी धर्मी शो कर दो, इतने तू चुप कर, और चुप करा देगा। नहीं, इस तरह ना कर। नम्रता नाल कह मानयोग भाई साहब जीओ, कीर्तन करने वाले सिंह साहब जीओ, सेवादार जीओ, प्यार आ जाएगा। ए जितने बाहर गेट ते खड़े होंदे ने ना, निहंग सिंह की शक्ल विच सेवादार जी, और बरछा चुक्या होंदा है। असी सानू दिस पैनना, असी उन्हें जफ्फी पाते हैं। वो हैरान ही रह जाते हैं, इत्थे तो पहला कोई नहीं आया जिहड़ा मैनू कोई सारे कहता पाए परे हो। सारे लोग रागी आते हैं, ओए वाजा चुक साडा इत्थे खड़ा होया है। असीं उन्हें जफ्फी पाते हैं। वो मैनू कहते वीर जी मेरे को पसीना आ रहा है, तुहाडे कपड़े गंदे हो जाएंगे।
मैं क्या यार मेरे गुरु के सिख हो यार, इंसान हो यार, बाहर गर्मी च खड़े हो के सेवा कर रहे हो, असी तो अंदर जाके स्टेजा ते बोलते रहने यार तुसी इन्नी सेवा कर रहे हो, मनु जफ्फी पाण दिओ ना। हुण ये उन्हों की प्राप्त होंदा है, उन्हों प्यार मिलता है, इनू पाख्या भाव पार कहते हैं। पर पाख्या भाव पार मिठी बोलनी वास्ते सानू दिन रात मेहनत करनी पैंदी है। तां करके गुरु साहब कहते हैं होंदा ताण नहीं ताणियां रह नहीं माननियां, मैं कुछ नहीं हाँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये नाल तेरा मन साफ होएगा, मनो कुशुद्ध कालियां साफ होंदियां जाणगियां। ए असलीयत ही चिट्टा है, ए असलीयत ही धर्मी है। जियो निर्मल बारो निर्मल, अदरवाइज अंदरों झूठे पैज बार, दुनिया अंदर फैल। हुण इस तो बाद की होएगा, 68 तीरथ जे ना मैं उतरे ना ही मैल। तू जिथे मर्जी चला जा, बर्फानी पहाड़ियां ते रोज जाके नहा लिया कर, भावें दुनिया के जिस मर्जी सरोवर ही जाके नहा लिया कर। 68 तीरथ जे नावै उतरे ना ही मैल। तीर्थां ते नहाण नाल मैल नहीं उतरदी, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक पाव लत्थी नात्यां दोए पा चढ़ियस होर। तू सोचा मेरी लत्थ गई है, मुक्ति हो गई है, नहीं तेनों एक होर अंकार चढ़ गया, मैं तीरथ ते नहा के आया। जे लोग पुछणगे नहीं तो मैं कहांगा एलो पंजीरी का प्रशाद, एलो वो फुलियां का प्रशाद, एलो मैं बोतल च को लैके आया अमृत, ए देखो। वो पुछणगे कित्थे गए सी, मैं फलानी जगह गया सी, उन्होंने धर्मी समझो। हुण धर्मी समझो, हुण मेरे नेड़े आओ, मैं कैंची चलावांगा, तुहानूं धोखा देंगा। बाहर धोती तूमड़ी अंदर विसनिकोर, साध भले अणनाते हैं। चोर से चोरा चोर, चोर नहाते ने, चोर बारों चिट्टापन दिखाते ने, चोर बारों बगले बन जाते ने। पर गुरु साहब कहते ने कागों हंस करे सतगुर मेरा कर सकता है। क्या हंस क्या बगला, जाको नदर करे। कोई भी सतगुर दी मत लैके सारे हंस बन सकते ने, सारे सच हो सकते ने, सारे चिट्टे हो सकते ने। शर्त ये रहेगी तैनूं बाहरले पानी दे नाल नहीं कुछ होएगा। सच की संगत लै लै, उहदे नाल अंदरों नवा लै अपने आप नूं। उहनूं कहंदे ने अंतरगत तीरथ मल ना हो। गुरदरियाओ सदा जल निर्मल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल ही रे। सतगुर पाइया पूरा नावण, पशु प्रेत तो देव करे। पशु प्रेत मेरा की सी, ऐ हो धोखा, झूठ, फरेब, हिपोक्रेसी। हुंदा ताण नी ताणियां, रह नी माननियां। नम्रता तां आएगी, हृदय गरीबी तां आएगी जे सतगुर दी मत तू ले। नानक जन्म सकार था, जे तिनकै संग मिला। तिनकै मनुख नहीं होंदा, तिनकै नंबर ऑफ पीपल नूं नहीं कहंदे ने। तिन कौन है, ढूंढ सज्जण संत पक्किया। संत कौन है, चंगे गुण, चंगे गुणा की संगत करया कर। उन्होंने कहते ने गुणा का होवै वासला, कढ़ वास लई जै। जे गुण होवै साजना, मिल सांझ करी जै। सांझ करी जै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए। पैरे पटंबर कर अडंबर, अपना पिर मलिए। जिथे जाए बईए भला कहीए। जे तेनू नम्रता नहीं ना आई, तू जिथे भी जाएगा नुक्स ही कटदा रहेगा। भला नहीं कहना आएगा, शुक्र करना नहीं आएगा, लोगों के अवगुण ही नजर आएंगे, दुखी दुखी रहेगा। नानक जन्म सकार था, जे तिनकै संग मिला। जे सच की संगत मैनू मिल जाए, सच के गुण मैनू मिल जान, वो मिलते ने। सच की संगत किनू कहते ने, सतगुर नूं। सतगुर बाजों संगत ना होई। सतगुर की संगत करया कर, मनुखा की संगत ना करया कर।